Good morning, Upper Room family. We hope that you had a wonderful weekend. Today is the last Sunday in the series in which Pastor Moses David is teaching us from Zephaniah chapter 3 verses 14 and 15. अगर आप में से किसी ने भी इस सीरीज को मिस किया है तो आप उसे अपर रूम इंडिया फेसबुक पेज या अपर रूम इंडिया यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। पिछले संडे पास्टर मोसेस ने हमें ये सिखाया कि परमेश्वर हमारे बीच में है और आज हम ये सीखने वाले हैं कि हम अब कोई विपत्ति नहीं भोगेंगे। इसके पहले कि हम इन बातों की और गहराई में जाए, आए हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है। टुडे as we all have gathered to worship from our homes, from wherever we are, there is a scripture that is coming to my mind, and that is found in the book of Psalms 150, the last psalm. And I want you to read it in your Bible if you can with me. And it says that, hallelujah, praise the Lord, praise God in His holy sanctuary, praise Him in His stronghold in the sky, praise Him for His miraculous, praise Him for His miracles of might, praise Him for His magnificent greatness, praise Him with the trumpets blasting, praise Him with piano and guitar, praise Him with drums and dancing, praise Him with a loud resounding clash of cymbals, praise Him with every instrument you can find. Let everyone, hallelujah, the Bible says, let everyone, everywhere join in the crescendo of ecstatic praise to Yahweh. Hallelujah, praise the Lord. Amen. And I believe that today, as we are going to obey God in His scripture as He commanded us, that let everyone, everywhere praise His name. Hallelujah. Amen. आज हम कहना चाहते हैं कि प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है। हालेलुया, तेरे जैसा कोई नहीं है। You're strong, you're mighty, and we all stand up and give Him the praise. Hallelujah. Standing up, doesn't just really mean that right now we are all standing. You might be sitting, you might be kneeling, but standing up is giving honor and reverence to God. Hallelujah. तो आइए अपने मनों को तैयार करें, अपने मनों से हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। अपने हृदय में उसके लिए आदर और सम्मान और गौरव के साथ आज उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। Are you ready? Church, are you ready to worship the living God? Thank you, Jesus. Father, we just commit each one of us into your mighty hands and pray that Holy Spirit, you would lead us to worship you, to praise the King of Kings and the Lord of Lords, our God who is worthy of praise and honor. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. You can clap your hands wherever you are. Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give Him the praise. Sing it again. Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give Him the praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Our God is worthy of glory. From the rising Of the sun. to its going down, the name of the Lord is to be praised. Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give Him the praise. Who is like the Lord? Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and
The name of the Lord is to be praised. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Our God is worthy of glory, from the rising of the sun to its going down. The name of the Lord is to be praised. Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Wherever we are, we stand up and praise and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Our God is worthy of praise. Stand up And praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Our God is worthy of praise. Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong And mighty, who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Lord, we stand up and give him the praise. Stand up, Stand up and give him one last time we cry, stand up. Stand up and give him the praise. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, clap your hands and bless him, for he deserves all the praise. He deserves all the glory. Hallelujah. The heaven and all the creation bow down before him. They bow down before the King of Kings and the Lord of Lords. All creation cries out to you that you are worthy of all praise. Thank you, Jesus. Hallelujah. We worship you, God. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Thank you, Lord. Come on, let's begin to sing a new song unto him. Let's begin to thank him for all the wonderful things that he is doing in your life. All the things that he has shown you. He's a God who is faithful. He's a God who is a God who promises, and all his promises are yes and amen in Christ Jesus. Hallelujah. ओ प्रभु जी धन्यवाद. धन्यवाद की तरह हर वादा पूरा होता है प्रभु. हम में से हर एक के जीवन में तू अपने कार्य को करता है. ओ विश्वासियों की परमेश्वर तेरी जय जयकार करते हैं. ओ आइए अपने मुंह को खोलकर उसकी आराधना करें. उससे कहें क्या वो आपके लिए करता है. Thank you, Jesus. Oh, to the living one. Our hearts are filled with gratitude today as we worship you, O God. हमारे हृदय से प्रभु धन्यवाद की एक प्रार्थना उठती है एक सच्चे खुदा को. हालेलुया.
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु ऐसा दो करना, सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु ऐसा दो करना। धन्यवाद के साथ स्तुति
कहे धन्यवाद. Thank you Jesus. हर वो काम के लिए जो तूने हमारे बीच में किया, हर वो काम के लिए जो तू करने जा रहा है, everything that you're going to do in our lives, हर वो वादे के लिए, for every promise, we thank you Jesus. Father, today we worship you who is exalted above all else. सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर यीशु तू है. And that's why, Lord, our hearts are filled with praise today. As we lift up our hands and lift up our hearts to you and cry out that be exalted, O Lord. Be exalted, God. Jesus. Oh, we exalt. We exalt. Jesus. You're above all. For thou, O Lord, art above all the earth. For thou, O Lord, art above all the earth. Thou art exalted far above all gods. Every hand lifted up, cry out, I exalt. I exalt thee. Come on, give him all the praise and honor. I exalt thee, and I exalt thee, oh Lord. I exalt you, Lord. I exalt and I exalt thee, and I exalt thee, oh Lord. We sing for thou, O Lord, for thou, O Lord, art above all the earth. Exalted far above
King of Kings and the Lord of Lords. Jesus, thank you, Lord, that you called us as our your friends, Lord. प्रभु जी तूने हमें दोस्त करके पुकारा, सबसे करीबी दोस्त. Thank you, Lord. We worship you. So closer than a brother, oh God. प्रभु जी तुझसे मांगते हैं कि इस समय हम में से हर एक को छू ले प्रभु. एक प्रेमी जैसा छूता है प्रभु, हमें छू ले. Thank you, Lord. Lift up the name of Jesus. Neighbor above all. Jesus. Jesus. Friend forever. Sing it to Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. What a beautiful name that is found in you, Lord. What a beautiful name. मेरा प्रभु, मेरा यीशु, the love of my life. Come on, everybody, lift up the name of Jesus. Name that is higher. The love of my life. Oh, we worship Jesus. 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 The love of my life.
There is love in your name, Lord. There is love in your name. प्रभु जी, यीशु मसीह वो नाम है जिसमें हम प्रेम पाते हैं, जिसमें हम वो शांति पाते हैं जो यीशु तूने हमारे लिए दिया. And we pray that, Lord, as we continue, Lord, with a heart of worship, Lord, we pray that your peace would reign in our hearts. Whoever is worshiping with us right now, in the days to come, when they join us and they worship, we pray that, Lord, your peace would grip their heart. Hallelujah. To all who lift up the name of Jesus, a friend who is for us, for our entire life. We bless you. All honor and all glory to you. Amen. Hallelujah. दूसरा कुरिन्थी 9:10 में लिखा है, जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा. इसे पढ़ने पर हमें पता चलता है कि जो बीज परमेश्वर ने हमें दिए हैं, उन्हें हमें कहीं बोना है ताकि वो फलवंत हो पाए. आप जानते हैं कि अपर रूम चर्च कई विधवाओं की और ज़रूरतमंद पास्टरों की मदद करता है. अगर आप इस भूमि पर अपने बीजों को बोना चाहते हैं तो अपर रूम चर्च के अकाउंट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर शेयर किए जा रहे हैं. आइए अब हम देखते हैं कि अब तक जो बीज आपने अपर रूम चर्च में बोए हैं, उनका हम कैसे इस्तेमाल कर पाए हैं. Come, let's pray. Upper Room Church, we want to say thank you. Before we give food, we pray and we thank Lord, and we remember all the people, those who sow into this feeding program. So we want to pray for you. We also want to submit this food, sanctify this food into Jesus' hands. Lord, King of Kings and the Lord of Lords, we are so thankful for this food, so thankful for the provisions you have given towards us feeding these people, Father Lord. Lord, I pray for all the people, those who are pouring into it directly, indirectly, through money, through services, through volunteering. Lord, we bless them, Lord. Thank you for allowing us to feed these people, Father Lord. 301 food packets a day, every day feeding 300 people, Lord. Thank you for your faithfulness. We bless this food. We sanctify this food. In Jesus Christ's mighty name I pray. Amen. Amen. Thank you. Thank you. Hi. Good morning. Let us read a Bible verse, then we want to share something with you. I'm reading Luke chapter 14, verse 12. And he also went on to say to the one who had invited him, when you give a luncheon or a dinner, do not invite your friends or your neighbors or your brothers or your relatives. Otherwise, they may also invite you in return, and that will be your repayment. But when you give a reception, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed, since they do not have the means to repay you, for you will be repaid at the resurrection of the righteous. Hallelujah. Upper Room Church, this is the core verse of what all we do. All of us invite people for lunch. You and me, we invite people, we give them food, and when we invite somebody, they invite us back and they repay us back. But when you and I, when we are pouring into this wonderful kids and families' life, they cannot pay us back. They don't even know your name, they don't even know my name, they don't even know who we are. But our Lord, who sees our secret giving, He is going to reward you and me in publicly. That's what I pray. When you give food, Lord is going to bless you publicly. Amen. So I pray, as a family, as a church, as Jesus Kitchen, we pray that public reward is going to be in you and your family. Radhi, you want to say something and add something, and then we can have a word of prayer for entire Upper Room family. Thank you, Upper Room Church, for standing beside us, and you have been faithful since for the past so many months. And we really say that we love you, and thank you for the commitment and the faithfulness you are showing towards Jesus Kitchen. And not only we, but the whole team of Jesus Kitchen loves you. These people whom we are seeing, they love you. And as I am standing here and speaking to you, I can see the smiles on their faces. The smiles not because I am standing here, but because they are receiving the food packets that is coming from your houses. So thank you once again, Upper Room Church. Thank you. Upper Room Church, we have Uncle Menon with us, who is one of our volunteers, who have not even missed a single day every day, packing and going and feeding people and distributing it. He would like to share something with you, so you can listen to him also. Thank you. Thank you, Upper Room Church. Thank you for being with us. Thank you for being with Jesus Kitchen. And you have been so great that you have been helping us from the very first day. And God bless you for this. We have been doing this for almost ever since the lockdown was there. I think it was the first
first time we did the kitchen service was on 21st of April, and ever since that we have been doing the service here on a daily basis. Approximately 300 lunches distributed to these children and elders here, and we would encourage you to be a part of this service, and God is going to really bless you for this great service. These people are those people who cannot give us back anything but their blessings, and we are sure you'll join hands with us and be blessed. In Jesus' name we ask and pray, and all people said, Amen. Father Lord, we pray, King of Kings and the Lord of Lords, this month, in the days to come, each and every family, those who have poured into Jesus Kitchen, Upper Room family, they will publicly get rewards in their careers, in their business, in their family life, and wherever they go in ministry, whatever they do, you will publicly reward them. In Jesus Christ's mighty name I pray. Amen. Amen. Bye-bye. Blessings on you and your family. Hallelujah. मेरा नाम विकास है और आज माई स्टोरी ऑफ होप के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार परमेश्वर ने मुझे लीगलिज्म से निकालकर अनुग्रह का भागी बनाया। मैंने प्रभु यीशु मसीह पे 2003 में विश्वास किया और प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, और सचमुच 2003 के बाद मेरा जीवन बदल गया। मैं बहुत खुश रहने लगा। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, और जिस बात के लिए मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उन सब बातों को सुना। वो चाहे किसी के फाइनेंस के लिए प्रार्थना हो, वो चाहे किसी के रिलेशंस के लिए प्रार्थना हो, और वो चाहे किसी बात के लिए प्रार्थना हो, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को आदर किया, क्योंकि अब मैं परमेश्वर की संतान था। लेकिन कुछ समय के बाद मैं अनेक सारी बातों में लीगलिज्म में घिर गया। लीगलिज्म का मतलब होता है कि कामों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना, ना कि परमेश्वर के साथ संबंध बना करके। इसलिए अनेक सारी बातों में जब कलीसिया में बोला जाता था कि तुम सोशल एक्टिविटीज में भाग नहीं लेना, लोगों के साथ सोशली कनेक्ट नहीं होना, क्योंकि इस प्रकार से कोट किया जाता है कि विश्वासी और अविश्वासी का क्या नाता। तो सोशली मैं डिस्कनेक्ट हो गया। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ या किसी और दूसरे लोगों के साथ सोशली बिल्कुल मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई बातचीत नहीं थी। सिर्फ जो भी सर्कल था वो कलीसिया का या अपना ही सर्कल था। इसलिए मेरी लाइफ में सोशल बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया। दूसरी बातों में अगर मैं कहूँ तो कपड़ों के विषय में भी अनेक सारे रूल्स थे। उनके बारे में कहा जाता था कि जीन्स नहीं पहनना या दूसरी प्रकार के कपड़े नहीं पहनने जो ठीक नहीं दिखते। एक और चीज़ कि सेलिब्रेशंस भी नहीं करना, अर्थात सेलिब्रेशन चाहे वो आपकी बर्थडे का सेलिब्रेशन हो, चाहे वो आपका एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन हो, ये सब बातों में रेस्ट्रिक्शन थी। अगर सेलिब्रेशन नहीं थी तो लाइफ में खुशी नहीं रही। सो इन सब बातों की वजह से मेरी लाइफ में एक कंफ्यूजन का माहौल पैदा हो गया। मैं हर बात में एक डायलेमा में, हर बात में एक दुविधा में जीवन बिताने लगा, क्योंकि कहते हैं कि तुम वो चीज़ करो, ये नहीं करो, ये करो, वो नहीं करो। लेकिन उनका इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाना, परमेश्वर के सब कुछ वचन से ही है, लेकिन इस प्रकार से इस्तेमाल जो कि आपकी लाइफ में दुविधा को उत्पन्न करने वाला था। आपको परमेश्वर में बढ़ाने वाला नहीं, लेकिन परमेश्वर से आपको दूर करने वाला था। जिस प्रकार से बोला जाता है कि तू पापी है, तू गलत है, तू कभी सुधरेगा नहीं। इस प्रकार से जब कलीसिया में या आपको बोला जाता है, या इस प्रकार एक माहौल में जब मैं ढलने लगा, तो मेरे जीवन में दुविधा आनी शुरू हो गई। मैं बहुत परेशान रहने लगा। किसी प्रकार का डिसीजन मैं ले नहीं पाता था। हमेशा एक गिल्ट भरा जीवन मैं जीने लगा था। और इस सब
का प्रभाव ये रहा कि मेरे जीवन में निराशा आ गई। मेरे जीवन में मेरा थॉट पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया। मैं परेशान रहने लगा, मैं घुटने लगा, मैं अंदर से पूरी तरह से खोखला हो चुका था। अब ये दशा इस प्रकार से हो गई थी कि मैं सचमुच अपने डिसीजन भी नहीं ले सकता था, क्योंकि सारा फोकस मेरा परमेश्वर पे नहीं लेकिन इन सब बातों में था। और मैं कलीसिया में सिर्फ इसलिए जाता था क्योंकि परमेश्वर से डरता था। मेरा परमेश्वर के पास जाना प्यार की वजह से नहीं लेकिन डर की वजह से हो गया था। इन सब बातों के चलते चलते मैं एक ऐसे मुकाम में पहुंच गया जहां पे मुझे ये लगने लगा कि मैं तो शायद पहले ही अच्छा था। मैंने मसीह में आके या कलीसिया में आकर के मैंने क्या प्राप्त किया? ना तो मेरे फ्रेंड कोई रहा, ना मेरे कोई दोस्त रहे, ना मेरी कोई सोसाइटी रही। मैं और बस ये लीगलिज्म, मैं और ये यस और नो, सिर्फ यही मेरा जीवन रह गया था। और अंत में मैंने ये सोचना शुरू किया कि मैं उद्धार प्राप्त कर सकता हूं कि नहीं, मेरा उद्धार होगा या नहीं, मैं जिस चीज के लिए मैंने यीशु मसीह पे विश्वास किया, क्या मैं यीशु मसीह के पास कभी पहुंचूंगा या नहीं। इस प्रकार का भी मेरे जीवन में हमेशा दुविधा रहती थी। लेकिन कुछ समय के बाद मेरी संगति बदली। मैंने जब अपर रूम इंडिया से परमेश्वर ने मुझे मिलाया तो सचमुच मेरा जीवन बदला, क्योंकि मैंने वहां से परमेश्वर के अनुग्रह को सीखना, परमेश्वर के अनुग्रह को समझना शुरू किया और मेरा जीवन बदल गया। जो सोसाइटी मेरी छूट गई थी, लोगों से बातचीत छूट गई थी, मैं अपना दिल खोलना जो छूट गया था, वो सब मैंने शेयर करना शुरू किया। मैंने पेरेंट्स के साथ मैंने एक अच्छा रिलेशन मेरा बनना शुरू हुआ, क्योंकि अब उनको मैं अविश्वासी करके नहीं देखता था, उनको मैं अपने माता पिता करके देखता था। मैं अपने भाई बहनों को अविश्वासी करके नहीं देखता था, मैं उनको अपने भाई बहन करके देखता था। जो डिफरेंसेस या जो कंफ्यूजन मेरी लाइफ में आया था वो अब दूर होने लगा। मैं उनको अब एक इंसान करके देखने लगा, मैं भाई बहन करके देखने लगा। इस प्रकार से अनुग्रह ने मेरे जीवन को खोला। और जो कंफ्यूजन मेरा उद्धार के बारे में था, जो ये कहता है कि उद्धार कामों के द्वारा होगा, जो मुझे लीगलिज्म ने सिखाया, लेकिन अनुग्रह मुझे ये सिखाता है कि अनुग्रह ही से तेरा उद्धार हुआ है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। और इस प्रकार से कहा गया कि जो अनुग्रह मुझे स्वर्ग से मिला उसे पृथ्वी मेंटेन नहीं कर सकती, अर्थात पृथ्वी के काम मेरे मेंटेन नहीं कर सकते। मेरे कामों के द्वारा ना तो मैं परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर सकता हूं और ना ही मेरे कामों के द्वारा मैं उस अनुग्रह को खो सकता हूं। लेकिन जब इस प्रकार का एश्योरेंस मेरी लाइफ में आया तो मेरा जीवन बदल गया। मेरी सारी जो अस्पष्टता थी या जो अनक्लैरिटी थी वो सारी के सारा दूर हो गया, मेरा सारा कंफ्यूजन दूर हो गया और मैंने अनुग्रह को पकड़ लिया। इस अनुग्रह के आने की वजह से जब मैं पूरी तरह से आश्वस्त हुआ तो सचमुच मेरा जीवन बदला। मैंने हंसना शुरू किया, मैंने अपना बातें लोगों के साथ शेयर करनी शुरू की। मैं जिस बातों से डरता था, अब मेरे जीवन में डर नहीं लेकिन परमेश्वर का प्रेम था और परमेश्वर के अनुग्रह ने मुझे पूरी तरह से पकड़ लिया था। इस प्रकार से मेरी सोशल लाइफ, इस प्रकार से मेरे पेरेंट्स के साथ मेरी लाइफ और जितने रिलेशंस मेरे जो छूट गए थे वो सब रिलेशन दोबारा से रिस्टोर हो गए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, इसलिए तुम दासत्व के जुए में ना जुतो। और परमेश्वर ने मुझे हर बात में स्वतंत्र किया, क्योंकि जो अनुग्रह मुझे परमेश्वर से मिला वो अनुग्रह मैं अपने कामों के द्वारा नहीं खो सकता हूं। इसलिए आज मैं ये कहना चाहता हूं कि लीगलिज्म नहीं लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह में हम विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन के लिए पर्याप्त है।
परमेश्वर का अनुग्रह मुझे मेरे उद्धार के मार्ग में लेके जा सकता है। इसलिए अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर में आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर के अनुग्रह में हमेशा बने रहिए, तो सचमुच आप उद्धार को प्राप्त करेंगे। हमारा जो परमेश्वर है उसके काम कभी भी नहीं बदलते हैं। The works of God are always great and mighty. The way He blessed, the way He's worked throughout creation, He is working today. Hallelujah. And today as we come and worship Him, let's believe God that He will do great and mighty works in each one of our lives. Hallelujah. आइए उसके नाम को ऊंचा उठाएं। उसका नाम
प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद देता परमेश्वर का कि प्रभु ने अनुग्रह दिया कि सफन्या की किताब से मैं आपसे बात कर सकूं। हम देख रहे हैं सफन्या 3 अध्याय का 14-15 वचन, और आज हम चौथे भाग के विषय में देखेंगे। और मैं आशा करता हूँ इस सीरीज के द्वारा परमेश्वर आपके लाइफ को ब्लेस कर रहा है, और आज के इस वचन के द्वारा भी प्रभु आपके जीवन को आशीष देगा। मैं आपको इनकरेज करना चाहता, जब ये वचन आ रहा है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें, और अपने जीवन में अद्भुत कामों को होता हुआ आप देखें। आइए एक और बार हम पढ़ेंगे सफन्या की किताब, इसका 3 अध्याय का 14 और 15 वचन को हम पढ़ेंगे। हे सियोन ऊंचे स्वर से गा, हे सियोन ऊंचे स्वर से गा, हे इस्राएल जय जयकार कर, इस्राएल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर, अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो, और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया, यहोवा ने आपका दंड दूर कर दिया है, और तेरा शत्रु भी दूर किया गया और है, आपके शत्रु को भी उसने दूर कर दिया है। इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इस्राएल का राजा यहोवा आपके बीच में, और उसकी आशीष आपके जीवन पर है। और चौथा भाग, इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। वहां परमेश्वर का वचन इज़राइल सियोन से बात करता है, मगर याद रखें जब इस वचन को हम देख रहे हैं तो व्यक्तिगत रीति से हम अपने जीवन के लिए इस वचन को रिसीव करें, और ये जान रखें कि ये वचन सियोन से, इज़राइल से नहीं, ये वचन इस समय आपसे बातें कर रहा है, और आपसे कह रहा है सुन, तू फिर कोई विपत्ति नहीं भोगेगा, क्योंकि तेरा राजा तेरे साथ है, तेरा परमेश्वर तेरे साथ है, तू कोई विपत्ति नहीं भोगेगा। अब चाहे तो परिस्थितियों को देखकर, आजू बाजू के हालातों को देखकर इस वचन पर आप विश्वास ना करें, मगर चाहे तो आज आप इस वचन पर विश्वास करके ये जान सकते हैं मेरा परमेश्वर जो सत्य है वो सच बोलता है, और यदि उसने वादा कर दिया है तो वादा मेरे जीवन में पूरा होगा, मैं फिर कोई विपत्ति नहीं भोगूंगा। परमेश्वर का ब्यूटीफुल वचन है, परमेश्वर की ये प्रॉमिस है। वो कहता तू फिर कोई विपत्ति नहीं भोगेगा। साम 91 का 10 वर्ष आपके लिए पढ़ेंगे। साम 91 के 10वें वचन में देखो क्या प्रॉमिस लिखा है परमेश्वर का वचन उसके लिए जो परमेश्वर के प्रेजेंस में बना रहता है, वो जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहता है, उसके लिए प्रतिज्ञा परमेश्वर जब कर रहा है तो वहां पर बड़ा ब्यूटीफुल वचन है। साम 91 का 10 क्या कहता है? इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी, कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के प्रेजेंस में तू बना रहता है, प्रभु की उपस्थिति में तू बना रहता है, और ये प्रतिफल है तेरा, ये परमेश्वर की ओर से उसके प्रेजेंस का ये अनुग्रह हमारे जीवन पर है। प्रभु कहता कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, तू कोई विपत्ति नहीं भोगेगा। आप देखिए मलाकी की किताब इसके 3 अध्याय के 11 से और 12 वचन में भी, मलाकी की किताब 3 अध्याय का 11 और 12 वचन में भी परमेश्वर कहता जो परमेश्वर के भवन में देते हैं, जो दशमांश को देते हैं, जो अपने धन को परमेश्वर के भवन में देते हैं, प्रभु कहता आकाश के झरोखों को खोलकर मैं तुम्हें आशीष दूंगा। और उसके बाद क्या कहता है, पढ़िए। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा। कोई डिस्ट्रॉयर आपके भूमि की उपज को डिस्ट्रॉय नहीं करने पाएगा। परमेश्वर कहता कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, कोई समस्या तुझ पर हावी नहीं होगी। मैं सत्यानाश करने वाले को तेरे विषय में घुड़कूंगा। कौन है सत्यानाश करने वाला? बाइबल का वचन कहता है चोर आता है कि चोरी करे, नाश करे और घात करे। शैतान के विषय में लिखा हुआ है कि वो आता है कि चोरी करे, नाश करे और घात करे। वो चुरा लेना चाहता है, हमारे जीवन को बर्बाद करना चाहता है, डिस्ट्रॉय करना चाहता है। मगर परमेश्वर का वचन कहता सुन, सत्यानाश करने वाले को मैं तेरे विषय में घुड़कूंगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रॉमिस। इस प्रॉमिस पर विश्वास करो कि मेरे पापा ने मुझसे ये वादा किया है। उसने मुझसे कह दिया तेरे डेरे के निकट कुछ तकलीफें नहीं आएगी। उसने मुझसे वादा कर दिया सत्यानाश करने वाले को मैं तेरे विरुद्ध में घुड़कूंगा।
वो ये कहता है यदि तेरे विरुद्ध नालिश करने के लिए कोई उंगलियां उठेगी तो मैं उसको खंडित करूंगा। वो ये कहता है ऐसा कोई शस्त्र नहीं बना जो तुझ पर कभी हावी हो सके। वो प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर जब वो हमारे बीच में है, वादे को पूरा करने वाला परमेश्वर जब वो हम में वास करता है, हमारे अंदर वो रहता है, सोचो ये प्रिविलेज हमारे लाइफ के लिए कैसे ओपन किए गए हैं। मैं आपसे कहना चाहता इन वचनों को सिर्फ पढ़ो मत, मगर प्रभु से कहो पवित्र आत्मा इन वचनों पर, इन प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने का अनुग्रह दे लॉर्ड। मैं बिलीव कर सकूं नहीं कोई विपत्ति नहीं आएगी। समस्याएं दिखती है, आजू बाजू दुनिया भर में तकलीफें दिखती है, परिस्थितियां दिखती है, हालातें गंभीर दिखते हैं, मगर इन हालातों के बीच में मैं परमेश्वर का वचन लिए हुए ज्योति के नहीं चमकूंगा, ये डिक्लेयर करते हुए ये परमेश्वर का वादा है। परिस्थितियों के बीच में यदि तू नदियों से होकर जाएगा तो तुझे डूबने नहीं दूंगा, यदि तू आग से होकर जाएगा तो तुझे जलने नहीं दूंगा। प्रतिज्ञा का परमेश्वर मुझसे कहता है सत्यानाश करने वाले को तेरे विषय में घुड़कूंगा। सफन्या की किताब जिसमें हम देख रहे वो कहता यू शैल सी डिजास्टर नो मोर, तू दोबारा डिजास्टर को नहीं देखेगा। इसका मतलब सत्यानाश करने वाले की चाल आपके जीवन में सफल नहीं होंगी, शैतान के बुरे कुटिल विचार आपके जीवन में सफल नहीं होंगे, फाड़ खाने वाले सिंह के नाई आपकी जिंदगी की ओर फाड़ने के लिए ताकते रहने वाला दुष्ट आपके जीवन भर आप पर सफल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर वास करता है। मैं आपसे कहना चाहता यदि इस परमेश्वर को आपने अपने अंदर आने नहीं दिया तो इस वचन को सुनते सुनते उस परमेश्वर को अपना लाइफ सरेंडर कर दो और प्रभु से कहो लॉर्ड ये प्रिविलेजेस आपके प्रेजेंस के मैं एंजॉय करना चाहता। क्यों चिंताओं में जिंदगी को जियो, क्यों भविष्य के डरावनी बातों को देखकर जीवन को जियो। जो संसार में हो रहा वो खबरें मुझे डराती है, मगर आज मैं आपसे कहना चाहता संसार की खबरें आपको डराने ना पाए, मगर परमेश्वर का जीवित वचन आपको आनंद से भरने पाए। क्योंकि परमेश्वर कहता है तेरे दाहिनी ओर 1000 गिरेंगे, तेरे बाई ओर 10,000 गिरेंगे, मगर एक भी तुझको छुएगा नहीं, क्योंकि सत्यानाश करने वाले को मैंने तेरे विरुद्ध गुड़का है। कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, कोई तकलीफ तेरे ऊपर नहीं आएगी। अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर वो जब हमारे बीच में हमारे साथ रहता है, उसका प्रेजेंस हमारे घर में, उसकी उपस्थिति हमारे जिंदगी में हमारे भीतर रहती है, ये आशीषें उसकी उपस्थिति में हमारे लाइफ में अपने आप बहने लगती है। आज मैं आपको इनवाइट कर रहा परमेश्वर के प्रेजेंस में जीवन व्यतीत करो, प्रभु की संगति में जीवन व्यतीत करो। कुछ समझ में आए या न समझ में आए, दुनियावी खिंचाव सामने आकर खड़े हो, तो भी मैं आपसे कहना चाहता हूं उन सारी बातों से ध्यान हटाकर परमेश्वर के साथ साथ बने रहना। पर अपने मन में, विचारों में, कल्पनाओं में परमेश्वर की संगति में बने रहने के अनुग्रह में आप बढ़ते चले जाओ। उसमें बहुत अद्भुत आशीषें छिपी हुई है, बहुत अद्भुत परमेश्वर की योजना है। जिनके साथ परमेश्वर रहता है, जिन पर परमेश्वर की नजरें लगी रहती है, जिनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहता है, जिनके लिए परमेश्वर कहता कोई डिजास्टर तेरे निकट नहीं आएगा, उनके लाइफ में क्या होता है मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आप खोलिए मेरे साथ में इतिहास की किताब, कुछ चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा इतिहास, हम जानते हैं दूसरा इतिहास 20वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो यहोशापात राजा के ऊपर कुछ राजाओं ने चढ़ाई कर दिया। अमोन के राजा, मोआब के राजा, माउंट सीर के राजा, इन राजाओं ने इकट्ठा होकर अपनी सारी सेना को लेकर बड़ी तादाद में यहोशापात के विरुद्ध लड़ाई का प्लान किया है। ध्यान से सुनना। और अब जब उसके विरुद्ध लड़ाई का प्लान किया, राजा को खबर पता चली है कि ये 3 राजा एक साथ मिलकर उसके विरुद्ध लड़ने के लिए चले आ रहे हैं। तब यहोशापात को पता नहीं चला, वो परमेश्वर के सामने गया और प्रभु के सामने गिड़गिड़ा कर कहने लगा, प्रभु इतनी बड़ी भीड़ मेरे विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए आ रही है, मुझे पता नहीं क्या करना है, आई नीड योर हेल्प लॉर्ड। और जब यहोशापात अपने प्रजा के लोगों को इकट्ठा कर कर जब वो प्रार्थना करने लगा तो बाइबल का वचन कहता है यहज़ेल नाम का व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा से भरकर उस स्थान से उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा, यहोवा यो कहता है ये शत्रु तेरा नहीं है, मगर अब ये शत्रु मेरा है।
इसलिए सुन, तुझे युद्ध को लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहोवा आप तेरे लिए युद्ध लड़ेगा। इसका मतलब क्या है मालूम? परमेश्वर ने डिसाइड कर लिया, विपत्ति तेरे ऊपर आने नहीं दूंगा, तू विपत्ति भोगेगा नहीं। शत्रु कितना भी प्लान कर ले, कितनी भी बड़ी तादाद में समस्या तेरे ऊपर आए, मगर जब परमेश्वर ने डिसाइड कर लिया कि विपत्ति आप पर हावी नहीं होगी तो नहीं होगी। डराने वाली बातें आपके जीवन पर आ जाए, मगर परमेश्वर ने यदि डिसाइड कर लिया कि आप पर वो हावी नहीं होगा तो नहीं होगा। आज मैं आपसे कहना चाहता, उस परमेश्वर के प्रेजेंस को पकड़ के रखो। अपने जीवन की हर एक लड़ाइयों में परमेश्वर के सामने अपनी विनतियों को रखो और प्रभु से कहो, पापा मुझे ये नहीं समझ में आता, पिता ये कैसे करना मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे एक बात मालूम है, आप मेरी ओर है। और परमेश्वर का वचन कहता, जिसकी ओर परमेश्वर है उसका विरोधी कौन हो सकता है? वो जो तुम्हारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। मैं आपसे कहना चाहता, उस पर विश्वास करो, उससे विनती करो। अपने लाइफ के सारे पेचीदे सिचुएशन में परमेश्वर के सामने पुकारो, अपने दिल को प्रभु के सामने उंडेलो। और वो परमेश्वर जो आपके अंदर रहता है, वो परमेश्वर जो आपके परिवार में रहता है, आपकी मंडली में रहता है, आपके साथ रहता है, वो परमेश्वर आपसे कहता है, सुन, ये शत्रु तेरा नहीं, ये शत्रु मेरा है। वाह! जब ये खबर यहोशापात राजा ने सुना, सुनो मेरी बात, जब ये खबर यहोशापात राजा ने सुना, यहोशापात राजा ने पूरे दिल से विश्वास कर लिया, परमेश्वर ने जो बोला वो सच है। आज जब ये परमेश्वर का वचन आपकी ओर आ रहा है, मैं यही घोषणा परमेश्वर के इस वचन की आपकी जिंदगी पर करना चाहता हूं। जैसे उस दिन वो नबी खड़े होकर उसने घोषणा किया, परमेश्वर कहता है तेरा शत्रु तेरा नहीं, वो मेरा शत्रु है। ऐसे आज मैं आपके लिए घोषणा करता हूं, हर एक वो शत्रु जो आपको बर्बाद करने के लिए उठते हैं, आज प्रभु कह रहा वो मेरा शत्रु है और युद्ध तेरा नहीं, वो मेरा है। आज मैं यीशु के नाम से डिक्लेयर करता, आपके हर एक बैटल परमेश्वर के बैटल हो जाए, आपकी हर एक लड़ाइयां परमेश्वर की लड़ाइयां हो जाए, आपके विरुद्ध उठने वाले हर एक दुष्ट की कल्पनाएं परमेश्वर आप उससे लड़ने पाए, उसके कनिंग डिवाइसेस परमेश्वर उससे लड़ने पाए और परमेश्वर आपको सांत्वना दे। परमेश्वर की ओर से आपके लिए कंफर्टिंग वर्ड, लड़ाई की खबरों के बीच में, डराने वाली खबरों के बीच में, व्हाट अ कंफर्टिंग वर्ड कि ये युद्ध तेरा नहीं, ये युद्ध मेरा है। वाह, व्हाट अ कंफर्टिंग वर्ड। सोच के देखो, परमेश्वर ये कह दे, बेटा जो आर्थिक लड़ाई तू लड़ रहा है ना, फाइनेंशियल लड़ाई, वो युद्ध तेरा नहीं, वो मेरा है, मैं संभाल लूंगा। कौन है मालूम? ये परमेश्वर जो कहता सोना और चांदी मेरा है। वो परमेश्वर यदि आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए बोल दे, लड़ने की जरूरत नहीं, ये युद्ध मेरा होगा। यदि आप बीमारी से लड़ रहे हैं और वो परमेश्वर जिसने अपने देह के अंदर आपकी बीमारियों का इलाज कर दिया, यदि अब वो आपकी बीमारी की ओर देखकर कह दे आज कि ये युद्ध तेरा नहीं है बेटा बीमारी से लड़ने का, ये युद्ध मेरा है, तो सोचो युद्ध में कौन जीतेगा? कौन सी समस्या है आपकी? क्या तकलीफ है आपकी? आज उसे परमेश्वर के सामने लेकर आओ, जैसे यहोशापात ने लेकर आया। सफन्याह की इस किताब में से, इस भाग में से विश्वास करो, परमेश्वर आज आपसे वादा करता है, यू विल सी नो डिजास्टर। कोई तबाही, कोई बर्बादियों को तू नहीं देखेगा, फिर तू कोई दुख नहीं भोगेगा, फिर कोई पीड़ा तू नहीं भोगेगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके लाइफ के लिए है। टेक इट, रिसीव इट। पापा मैं रिसीव करता इस वचन को लॉर्ड, क्योंकि आप जो बोलते हैं वो होता है। और मालूम, जब परमेश्वर ने बोल दिया ना, कोई पीड़ा इस पर नहीं आना, पूरा हेवन आपके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अब तकलीफें आप पे हावी नहीं हो सकती। विजिबल इनविजिबल स्पिरिट्स, विजिबल अटैक्स, इनविजिबल अटैक्स, कुछ आप पर हावी नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर के प्रोटेक्शन का कवरिंग आपके ऊपर है। और मालूम कौन सा प्रोटेक्शन? उसके अपने प्रेजेंस का प्रोटेक्शन आपके ऊपर है। यहोवा तेरा राजा तेरे बीच में है, इसलिए फिर तो कोई विपत्ति नहीं भोगेगा। देखो बाइबल का वचन कहता है, यहोशापात ने परमेश्वर के सामने घोषणा किया,
परमेश्वर के सामने विनती किया और वहां से नबी उठकर उसको बता दिया ये युद्ध परमेश्वर का है। जोशापात एक्साइटेड हो गया और एक्साइटेड होकर जोशापात ने कुछ स्टेप लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप खोलिए मेरे साथ दूसरा इतिहास 20वां अध्याय का 20 वचन पढ़ेंगे। आप सुनो क्या लिखा है, पढ़िए। वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए। हाँ। और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो। वाओ, दैट्स द वर्ड, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो। उस दिन जो जोशापात ने बोला, आज मैं आपसे कहना चाहता, उसने कहा है यरूशलेम के लोगों, इजराइलियों, हे परमेश्वर के बच्चों, विश्वास रखो अपने परमेश्वर पर। आज मैं आपसे कहना चाहता, जिस यीशु को आपने अपना जीवन दिया है, जिस परमेश्वर को आपने अपना जीवन दिया है, जिस यहोवा को आपने अपना धाम मान लिया है, जिस यहोवा को अपना लाइफ सरेंडर किया, उस पर विश्वास रखो। आपकी हर एक लड़ाइयों में वो आपको जयवंत बनाएगा। वो प्रतिज्ञा कर कर भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। उसने कहा मैं तुझे जय के उत्साह में लेकर चलूंगा। इसका मतलब युद्ध वो आपके लिए जीतेगा, लड़ाइयां वो आपके लिए जीतेगा। वो परमेश्वर प्रतिज्ञा का सच्चा परमेश्वर है, जिसने कहा कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा तो नहीं आएगा, विश्वास करना। वो वादे का पक्का परमेश्वर है। उसके विषय में जोशापात कह रहा है, सुनो, जब कल परमेश्वर ने कह दिया है कि अब युद्ध वो लड़ेगा, तो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखो। आज वचन के द्वारा मैं आपसे कह रहा, आपकी लड़ाई परमेश्वर लड़ता है, वो लड़ेगा। आप परमेश्वर पर विश्वास रखो। और दूसरा, परमेश्वर के सेवकों पर विश्वास रखो। जब उनके मुख के द्वारा परमेश्वर आपके लाइफ के लिए घोषणा देता है, जब उनके मुख के द्वारा परमेश्वर अपना वचन आप तक पहुंचाता है, तो एज ए प्रॉफिटिक वर्ड अपने लाइफ के लिए उसको रिसीव करो और ये बिलीव करो, परमेश्वर जब मैं ये सुन रहा हूं तो परमेश्वर पर्सनली मेरे से बात करके मुझसे कह रहा है, यू विल सी नो डिजास्टर। सत्यानाश करने वाले को तेरे विषय में मैं घुड़कूंगा। इसका मतलब उसको बोलूंगा, हे मेरे बेटे के पास नहीं जाना, हे मेरी बेटी के पास नहीं जाना, उसको छूना नहीं, उसको देखना नहीं, उसके घर से दूर रहना, उसके सिवाने से दूर रहना। इसे कहते हैं घुड़कना। डांटूंगा उसे। वाओ, आपका पप्पा आपको सत्यानाश करने वाले को डांटने के लिए तैयार है, क्योंकि उसने वादा किया है, You will see disaster no more। अब जब परमेश्वर ने जोशापात के दिनों में जोशापात को वादा करके बता दिया, अब युद्ध मेरा है, जोशापात ने कुछ डिसाइड किया जो आपको और मुझको भी डिसाइड करने का जरूरत है। नंबर 1, उसने कहा परमेश्वर पर हम भरोसा रखें, परमेश्वर पर विश्वास रखें। नंबर 2, 21 वर्ष में देखो क्या लिखा है। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, फिर उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर, जो पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए, हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए, यहोवा के गीत गाए। मालूम जोशापात ने क्या सोचा, जब लड़ाई हमको लड़ना ही नहीं है तो क्यों ना हम वर्शिप करें बाय फेथ, आराधना करें बाय फेथ। कहीं भी बाइबल में ये नहीं लिखा है परमेश्वर ने उससे कहा तू मुझे आराधना कर, मगर जोशापात ने डिजायर किया, मैं वर्शिप करूंगा, मैं आराधना करूंगा। जोशापात ने ये डिजायर किया। बड़े ध्यान से सुनो जो मैं आपको बता रहा हूं। अब जब परिस्थितियां बिगड़ी भी गए और परमेश्वर का वचन आपके पास आ रहा है, यू नीड टू डिसाइड, या तो आप डर के बैठे रहो, या तो आप डिसाइड करो आई विल वर्शिप माय गॉड, क्योंकि लड़ाई तो वो लड़ रहा है, मैं तो आराधना करूंगा, मैं तो रिजॉइस करूंगा। इसलिए तो सफन्या में कहता, जय जयकार कर, आनंद कर, ऊंचे स्वर से गा। क्या जोशापात जय जयकार करने नहीं लगा? क्या आनंद करने नहीं लगा? क्या ऊंचे स्वरों से लड़ाई के मैदान में गीत गाते हुए लोग नहीं गए? कब गाए उन्होंने? युद्ध जीत लेने के बाद में नहीं, फिजिकल बैटल हुआ ही नहीं। ध्यान से सुनो,
दे बिलीव्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। जब उनके परिस्थिति के विरुद्ध परमेश्वर का वचन आया, वहीं से प्रेजेंस बिगिन हो गया। आपको कब परमेश्वर की आराधना करना है? अभी जब परमेश्वर का वचन आपके पास में आ रहा है, अभी जब प्रभु का वर्ड आ रहा है, यू नीड टू राइज अप एंड से थैंक यू लॉर्ड, तूने मेरी विपत्ति को दूर कर दिया है। थैंक यू लॉर्ड, तूने मेरे शत्रु को डांट दिया है। थैंक यू लॉर्ड, वो परिस्थितियां जो मेरे आंखों में आंसू लेकर आती है, तूने उसे कंपित कर दिया और तूने उसे घबरा दिया है। आई विल रिजॉइस यू लॉर्ड, आई विल वर्शिप यू। मेरी बिगड़ी हुई परिस्थिति में मैं तेरी आराधना करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा लॉर्ड। यहोशापात से मैं ये लेसन को सीखूंगा कि जब परमेश्वर ने मेरे डिस्ट्रॉयर को हरा दिया है, मैं इस युद्ध के बीच में परमेश्वर की आराधना करूंगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। कम ऑन, मैं आपको 2 मिनट देना चाहता। अपना मुख खोलिए और प्रभु को धन्यवाद दे। अपने हाथों को उठाया, कहे थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अपने हर एक परिस्थिति के बीच में मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हर एक सिचुएशन के बीच में आपको धन्यवाद देता हूँ। इसलिए धन्यवाद देता क्योंकि आपका वर्ड मेरे लिए आ रहा है। ये वर्ड मेरे लिए आ रहा है। आपने मेरे शत्रु के साथ व्यवहार कर लिया है, मेरे फाइनेंशियल एरिया के शत्रु के साथ व्यवहार कर लिया है, मेरे हेल्थ के विरुद्ध शत्रु के साथ व्यवहार कर लिया है, मेरे फैमिली के विरुद्ध उठने वाले शत्रु के साथ आपने युद्ध लड़ लिया है पिताजी। थैंक यू लॉर्ड, आपने मुझे जयवंत से बढ़ के बना दिया। धन्यवाद, आपने मेरी विक्ट्री की घोषणा कर दिया। थैंक यू, मेरे बैटल को अपना बैटल आपने बना लिया। थैंक यू लॉर्ड, आई रिजॉइस, आई रिजॉइस। मैं आपका आनंद करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं लॉर्ड। प्रेज गॉड। मेरा इंटेंशन टॉपिक कंप्लीट करना नहीं है, मेरा इंटेंशन है आपका हार्ट इस वचन के साथ कनेक्ट हो जाए। ये वचन आपके गूदे गूदे को चीरता हुआ अंदर जाए और आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फेथ आपके अंदर भर जाए। ये जानकर मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं कोई विपत्ति नहीं भोगूंगा। क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, कोई दुख मेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे फाइनेंशियल एरिया को बिगाड़ने वाले को मेरा बाप घुड़केगा, मेरी परिस्थिति बिगड़ेगी नहीं। रिजॉइस, ओपन डिक्लेरेशन करो, फेथ डिक्लेरेशन करो और कहो ऐसा ही होगा जो मेरे पिता ने कहा, ऐसा ही होगा। क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाते हैं, मेरे पापा के शब्द कभी नहीं टलते हैं। Yes, that is ours. देखो परमेश्वर का वचन कहता है, यहोशापात ने क्या किया? यहोशापात ने गीत गाने वाले, आराधना करने वालों को आगे कर दिया। और आगे करने के बाद में देखो मैं आपको कुछ बताना चाहता। 22वां वचन पढ़ेंगे। 22वां वचन। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने हाँ, अम्मोनियों, मोआबियों हाँ, और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, हाँ, घातकों को बैठा दिया, हाँ, और वे मारे गए। ओ देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर ने वे शत्रु यहूदा के लोगों को मारने, यहोशापात के लोगों को मारने के लिए आ रहे थे, मगर इससे पहले कि शत्रु इनके पास आ जाए, यहोवा ने घातकों को बीच मार्ग में बैठा दिया। ये घातक कौन थे, कहां से आए, मैं नहीं जानता। क्या ये स्वर्गीय सेना थी जो उतर कर आई, मैं नहीं जानता। क्योंकि बैटल तो परमेश्वर ने अपने हाथ में ले लिया था। हेवनली फोर्सेस आ गए थे क्या, मैं नहीं जानता। मगर मैं एक बात जानता हूं, जब परमेश्वर युद्ध आपका अपने हाथ में ले ले, तो परमेश्वर की सेना आपके लिए लड़ने के लिए उतर कर आती है। परमेश्वर की सेना उतर कर आती है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, परमेश्वर के वचन के पीछे हेवनली होस्ट निकल कर आते हैं। जब परमेश्वर का वर्ड आ गया, ये बैटल तेरा नहीं है यहोशापात, ये बैटल मेरा है, तो उस वचन के साथ स्वर्गीय सेना भी आकर जुड़ गई और युद्ध को लड़ने लगी। आज जब ये वचन आपके पास में आ रहा है, इस वचन के साथ हेवनली होस्ट आपके घर में आ रहे हैं, स्वर्गीय सेना आ रही है। और सुनो, वो आपसे लड़ने नहीं, मगर आपके शत्रु से लड़ने के लिए आ रही है, आपकी चिंताओं से लड़ने के लिए आ रही। यीशु के नाम से ऐसा ही होने पाए। यीशु के नाम से आपके कर्जे से परमेश्वर की सेना लड़ने पाए। आपकी बीमारी से परमेश्वर की सेना इसी समय लड़ने पाए। यीशु के नाम से आपके आंसूजनक परिस्थितियों से इसी समय परमेश्वर की सेना लड़ने पाए। घातक
उन्हें घात करने पाए, परमेश्वर के ठहराए हुए घातक आपकी बीमारियों को मारने पाए, परमेश्वर के ठहराए हुए घातक आपके कर्जे को मारने पाए। ऐसा ही हो यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, वी रिजॉइस इन दिस वर्ड ओ लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर के घातक आपकी सुरक्षा का कवच है, आपके लिए वे युद्ध लड़ने वाले हैं। कहां से आएंगे, क्या आएंगे वो नहीं पता, मगर परमेश्वर के तरफ से वो ठहराए जाएंगे। यीशु के नाम से आज के दिन से आपके लाइफ में ऐसा ही होने पाए। देखो परमेश्वर का वचन कहता है 3 प्रकार के लोग, थोड़ा सा मैं आपको यहां लेकर जाऊंगा, पवित्र आत्मा मदद करे समझने में आपकी। ध्यान से सुनो, 3 प्रकार के जाति के लोग इनके विरुद्ध लड़ने के लिए आए। यहोशापात परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा, परमेश्वर के बेटे बेटियों के विरुद्ध लड़ने के लिए आए। एक अमोन जाति के लोग, दूसरा मोआबी लोग, तीसरा माउंट सेर के लोग। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मैं इसका अध्ययन करने लगा, अमोनी जाति के लोगों के विषय में अध्ययन करने लगा कि ये अमोनी कौन है, ये मोआबी कौन है। और हम स्टोरी को जानते हैं कि लूट की दोनों बेटियां, बड़ी बेटियों से जो है वो मोआबी पैदा हुए, छोटी बेटी से अमोनी लोग पैदा हुए। और ये दोनों बेटियां अपने ही पिता के साथ शारीरिक संबंध किए। अपने पिता लूट को शराब के नशे में तुन्न करके उनके साथ शारीरिक संबंध किया, और उससे जो पैदा हुए बच्चे वो जातियां हैं। ये सुनो ध्यान से, ये वे जातियां हैं। मगर ये जातियां, मुझे ये बड़ा अचंभा होता कि इनके बाप दादा सदोम गमोरा से बच के निकल कर आए, वहां के गंदे जीवन से बच के निकल कर आए। ये जवान लड़कियों ने देखा, फिर भी उनमें से एक ऐसी ये जातियां निकली जिनके विषय में परमेश्वर कहता घृणित है ये जातियां। परमेश्वर इन लोगों के विषय में बहुत बहुत नाराज होता है। इन लोगों ने जिन चीजों को अपना लिया उसके विषय में परमेश्वर दुखी है। कुछ बातें आपको जल्दी से बताऊंगा, ध्यान से सुनो। अमोनी जो लोग हैं, अमोनी जो जाति के लोग हैं, इनका परमेश्वर मेलकम नाम का देवता है। इनका जो देवता है उसका नाम मेलकम है। मेलकम नाम के इस देवता का मतलब है हमारा राजा। उस मेलकम, उस गॉड को वो हमारा राजा बोलते थे, उसकी उपासना करते थे। और वो जिसको उसने अपना राजा बना दिया, जिसको उसने अपना किंग बना दिए थे अमोनी जाति ने, अब वो स्पिरिट ऑफ किंगशिप उनके ऊपर में रूल करता है, राज्य करता है। बड़े ध्यान से सुनो जो बातें मैं आपको बता रहा। अमोनी जाति के लोग उसकी प्रभुता के तले पलते हैं। उनका माइंडसेट उस स्पिरिट के द्वारा ऑपरेट होता है। अमोनी की जाति के लोगों के जीवन में ये वाला स्पिरिट काम करता है। और ये मेलकम जो गॉड था उनका, ये मेलकम गॉड के लिए जब भी वे बलिदान चढ़ावा करते थे तो बलिदान में वे अपने बच्चों को आग में जला देते थे, या अपने बच्चों को आग में से प्रसार कराते थे। और उस रीति से वे उसकी आराधना करते थे, उस रीति से उसकी भक्ति करते थे। ये वो गॉड था जो छोटे छोटे बच्चों का बलिदान मांगता था। ये वो स्पिरिट है जो छोटे बच्चों का बलिदान मांगता है, बच्चों का सैक्रिफाइस मांगता है। क्या बताना चाह रहा मैं आपको? पवित्र आत्मा आपकी मदद करे इन चीजों को समझने में, मगर जल्दी से समझ लो मैं आपको कुछ बताना चाह रहा। अमोनी आराधना करते थे उस गॉड का जिसको वो किंग करके मांगते थे, और उसकी प्रभुता के तले जब वो बच्चों के बलिदान मांगता था तो ये बच्चों का बलिदान वर्शिप में उसको चढ़ाते थे। वो स्पिरिट के द्वारा वो इन्फ्लुएंस थे कि अपने बच्चों को बलिदान चढ़ाने के लिए दे देते थे। ओके, नंबर 2, मोआबी जाति के लोग जो थे वो चेमोश नाम के गॉड की आराधना करते थे। केमोश नाम के गॉड की आराधना करते थे, जिसके नाम का मतलब है द डिस्ट्रॉयर या सबड्यूअर। ये वो है जो बर्बाद करने वाला है, या सारी बातों को अपने वश, अपने कब्जे में ले लेने वाला, ये ऐसा गॉड है। तो मोआबी लोग उसके कब्जे में है क्योंकि वो वाला स्पिरिट वहां ऑपरेट करता है। अमोनी लोग राजा की प्रभुता में है और अपने बच्चों का बलिदान करते हैं क्योंकि वो वाला स्पिरिट उनके लाइफ में ऑपरेट करता है। और जब मैं इन बातों के विषय में देख रहा था, सो
यहोशापात राजा के ऊपर जब ये चढ़ाई करने के लिए आए, अमोनी जाति के लोग, मोआबी जाति के लोग, अन्य अन्य जाति के लोग जब ये चढ़ाई करने के लिए आए, तो उनके आड़ में वो स्पिरिट परमेश्वर के बच्चों पर चढ़ाई करना चाहते थे, जो स्पिरिट परमेश्वर के बच्चों के ऊपर अपना किंगशिप चलाना चाहते हैं, जो स्पिरिट परमेश्वर के बच्चों को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, जो स्पिरिट परमेश्वर के बच्चों का सब कुछ सबड्यू, सब कुछ अपने कब्जे में ले लेना चाहते हैं। देखो सैटन की क्वालिटी दिख रही कि नहीं? वो आता है कि चोरी करे, आपका सब कुछ अपने कब्जे में ले ले, चोरी करे। वो आता है कि नाश करे, डिस्ट्रॉयर। और वचन कहता है वो आता है कि घात करे, अपनी प्रभुता लेकर आपको खत्म कर दे। ये दोनों देवताओं में जो जिसकी उपासना अमोनी और मोआबी करते थे, इन देवताओं में सैटन का कैरेक्टर रिवील है, बिकॉज दे वर ऑपरेटिंग इन द कैरेक्टर ऑफ सैटन। दुष्ट के डिस्ट्रॉयर के कैरेक्टर में वे ऑपरेट हो रहे थे। ध्यान से सुनो, पवित्र आत्मा भी मेरी मदद करे आपको समझाने में और आपकी मदद करे इसे समझने में। सो व्हाट वाज द इंटेंशन यहोशापात के दिनों में? उनका लक्ष्य, उनका इंटेंशन क्या है? ये इंटेंशन है चुने हुए प्रभु के बेटे बेटियों के लाइफ पर हमारी प्रभुता हो। फिजिकली अमोनी का राजा कोई और होगा, मोआबी का राजा फिजिकली कोई और होगा। ध्यान से सुनो, माउंट सेर के इनका राजा फिजिकली कोई और होगा, मगर फिजिकल राजाओं के आड़ में इनविजिबल स्पिरिचुअल उनका कोई और राजा है, जो डिमोनिक रेलम में होकर ऑपरेट करता है, इन सारे लोगों के माइंड को ऑपरेट करता है। ध्यान से सुनो, इनको ऑपरेट करता है। अब यहोशापात जब देखता है तो यहोशापात फिजिकल दिखने वाले राजाओं को देखता है, मगर इनविजिबल उनका राजा जो उनको उकसा रहा इनको बर्बाद करने के लिए, वो उनको दिखाई नहीं देता है। मगर परमेश्वर को इनविजिबल और विजिबल दोनों भी राजा दिखाई देते हैं। और तब परमेश्वर ये कहता है, सुन यहोशापात, ये युद्ध तेरा नहीं है, ये युद्ध मेरा है। इसका मतलब चाहे इनविजिबल अटैक हो या विजिबल अटैक हो, दोनों से बचाने की ताकत तेरा राजा कर सकता है। क्योंकि जो राजा तेरे बीच में है ना यहोशापात, वो राजा ही नहीं है, वो राजाओं का राजा है। आपका मेरा परमेश्वर केवल एक साधारण राजा नहीं है, ही इज ए किंग ऑफ किंग। वो राजाओं का राजा है, वो सर्वशक्तिमान राजा है, वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। वो ये कहता है यहोशापात, दिखने वाला या नहीं दिखने वाला, दोनों से डरना मत, क्योंकि युद्ध परमेश्वर ने तेरा अपने हाथ में ले लिया है। तो मुझे क्या करना है प्रभु? मुझे केवल भरोसा करना है, भरोसा करना है। प्रभु सब कुछ संभालेगा, प्रभु सब कुछ सही करेगा, प्रभु सब कुछ संभालेगा। और तब यहोशापात ने भरोसा किया कि चाहे मेरे विरुद्ध बर्बाद करने वाला स्पिरिट उठे, चाहे मेरे विरुद्ध कब्जे में लेने वाला स्पिरिट उठे, चाहे मेरे विरुद्ध ऐसा राज्य करने वाला स्पिरिट उठे। क्या है? सुनो, मैं आपको थोड़ा सा और खुला करता हूं। राज्य करने वाला, किंगशिप वाला स्पिरिट क्या है? इसके विषय में लिखा है रोमियो 7वें अध्याय में कि पाप तुम्हारे नश्वर शरीर पर राज्य ना करने पाए। उस समय में अमोनियों का जो राजा है वो विजिबली दिखाई दे रहा है, मगर परमेश्वर हमको ये बता रहा, वो अमोनियों का जो स्पिरिट है, वो मेलकम का जो स्पिरिट है, वो स्पिरिट सिन को हमारे लाइफ पर अटैक करने के लिए रिलीज करता है। उन दिनों में अमोनियों के राजा, अमोनियों को उसने इनकरेज किया कि वो अटैक करे। हमारे दिनों में वो सिन को इंट्रोड्यूस करता है कि हमारे लाइफ को वो गुलामी में लेकर आए। मगर परमेश्वर कहता, बेटा चिंता मत कर, जब तेरा राजा छुड़ाने वाला तेरे बीच में है, यीशु उद्धार करता जब तेरे बीच में है, तो पाप तेरी देह पर राज्य नहीं करने पाएगा, मगर परमेश्वर तुझे संभाल कर रखेगा। Righteousness will rule upon you. परमेश्वर की धार्मिकता तुझ पर राज्य करेगी। तेरे हृदय रूपी सिंहासन पर परमेश्वर का सिंहासन बनेगा। बाइबल प्रभु ये कहता, तेरे आराधना के सिंहासन पर परमेश्वर है जो विराजमान होगा। इसलिए प्रभु वादा करता, तेरा राजा तेरे बीच में है। याद रख,
उसका राजा होगा, मगर तेरा राजा तेरे बीच में है और वो तुझे संभाल के रखेगा। पाप को आपके लाइफ पर हावी नहीं होने देगा, वो आपको संभाल के रखेगा। सेकेंड चीज कहता है डिस्ट्रॉयर क्या है? डिस्ट्रॉयर क्या है? बर्बाद करने वाला। ये चेमोश जो मोआबियों का देवता है, ये क्या स्पिरिट है? ये वो स्पिरिट है जो हमारे पीस को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। ये वो स्पिरिट है जो फैमिली के जॉय को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। ये वो स्पिरिट है जो आप जो भी कुछ कामों को करते हो उसको बर्बाद करना चाहता है। ये वो स्पिरिट है जो आपके रिश्तों को बर्बाद करना चाहता है। ये वो स्पिरिट है जो आपके जवान बेटे बेटियों को बर्बाद करना चाहता है, चाहे नशे के माध्यम से बर्बाद करे, चाहे वेश्यागमन के माध्यम से बर्बाद करे, चाहे मैरिज के पहले कहीं कुकर्म में गिराकर आपको बदनाम करके बर्बाद करना चाहे। नाना प्रकार की कुटिल योजनाओं से, जिन भी मार्गों से वो आपको बर्बाद करने की कोशिश करता है, प्रभु कहता बेटा चिंता मत करना, तेरा राजा तेरे बीच में है, इसलिए सत्यानाश करने वाला तुझ पर जय नहीं पाने पाएगा। वो तेरे ऊपर जय नहीं पाने पाएगा, बर्बाद करने वाला विक्ट्री नहीं लेने पाएगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लान जो यहोशापात से प्रभु ने वादा किया। आज प्रभु आपसे कह रखा, देखो अम्मोनियों के और मोआबियों के देवता इनविजिबली हमारे दिनों में भी ऑपरेट कर रहे हैं, बट आई वांट टू टेल यू मेरे बच्चे, तेरा बाल भी बाका नहीं होगा। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो को आग ने बाल भी नहीं जला पाया, ऐसे तेरा नहीं होगा, क्योंकि सत्यानाश करने वाले को मैं तेरे विरुद्ध में घुड़कूंगा। इस वचन पर बिलीव करो, इससे ले लो, परमेश्वर के डिवाइन प्रोटेक्शन को अपने लाइफ पर ले लो। प्रभु काम कर रहा, सबड्यू, वो कब्जे में ले लेगा, कब्जे में ले लेगा। जहां हम देखते हैं ना, लोग रास्तों पर, चौकों, सड़कों पर आपने देखा होगा, पागल के नाई वस्त्र निकालकर नंगे घूमते हैं, महिलाएं भी घूमती है, पुरुष भी घूमते हैं, पूरे समय डीमन पजेस्ड होकर घूमते हैं, दुष्ट आत्माओं में झगड़े रहते हैं। मगर परमेश्वर ये कहता, लिसन, ऐसे स्पिरिट्स जो तुझ पर कब्जा करना चाहते हैं, ऐसे स्पिरिट्स जो घरों पर कब्जा करना चाहते हैं, मैं उससे तुझे स्वतंत्र रखूंगा, वो तुझ पर कब्जा नहीं करने पाएंगे। बिलीव इट, टेक इट, ये परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं सत्यानाश करने वाले को तेरे विरुद्ध में घुड़कूंगा। कुछ बातें मैं आपको प्रभु के वचन से बताऊंगा। यहोशापात इन अम्मोनियों से लड़ने के लिए गया, परमेश्वर ने युद्ध लड़ा। यहोशापात जाकर क्या करके आया मालूम? बाइबल का वचन कहता, जब वे उन तक पहुंचे तो वे आपस में घात होकर मरे पड़े हुए थे, डेड बॉडीज पड़े हुए थे, वे मरे हुए थे। और यहोशापात और उसकी टीम 3 दिन तक लूट बटोरते रही। वचन कहता, इतना निकाले कि उनको ले जाना मुश्किल पड़ रहा था, इतना लूट उन्होंने बटोरा। क्या बताना चाह रहा मैं आपसे? जब युद्ध परमेश्वर आपके लिए लड़ता है तो हम सिर्फ बटोरने का काम करते हैं, हम सिर्फ बटोरने का काम करते हैं। आज मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि आपने अपना जीवन यीशु को दिया है, क्योंकि आपने प्रभु से रिश्ता बांधा है, आपको वो लूटने नहीं पाएगा, आप लूट को बटोरोगे, आप सारी चीजों को बटोर के लेके आओगे, युद्ध में आप जीत कर पराक्रमी होंगे। मगर आपको मालूम, मैं बाइबल में से एक जन की स्टोरी आपको बताना चाहता हूं। द वाइजेस्ट किंग, सबसे बुद्धिमान राजा सुलेमान, उसके विषय में आपको कुछ बताना चाहता। बाइबल क्या बात करती है? इतना बुद्धिमान था कि अपनी बुद्धिमानी से उसने राज्य चलाया और 40 साल कभी भी कोई शत्रु उससे लड़ने के लिए नहीं आया, उसने लड़ाई करने के लिए नहीं गया। ही वॉज ए वाइज किंग, कोई उससे लड़ने के लिए नहीं आया। मगर सुनो, फिजिकल राजा उससे लड़ने के लिए नहीं आए, मगर इनविजिबल स्पिरिचुअल राजा, इनविजिबल किंग्स, ऐसे गॉड्स जो अपने आप को किंग मानते हैं, इनविजिबल स्पिरिट्स, वे सुलेमान से लड़ाई में जीत गए। मैं आपको कुछ पढ़ाना चाहता, आप खोलिए मेरे साथ यिर्मयाह 32वां अध्याय का 35 वचन। देखो प्रभु का वचन क्या कहता। यिर्मयाह 32वां अध्याय का 35 वचन को पहले पढ़ लेंगे, फिर आगे दूसरा और वचन मैं आपको पढ़ाऊंगा। ध्यान से सुनो, एक पार्ट मेरा छूट गया था, मैं आपको बताता हूं। यिर्मयाह 32 का 35 पढ़ो।
उन्होंने हिन्नोमियों की तराई में हाँ बाल के ऊंचे ऊंचे स्थान बनाकर हाँ अपने बेटे बेटियों को मोलक के लिए होम किया। मोलक, मेलखम इंग्लिश में लिखा गया, मोलक हिंदी में लिखा गया। मोलक को अपने बच्चों को उन्होंने बलिदान किया। ये वो स्पिरिट है किंगशिप का जो आपके बच्चों पर कब्जा लेकर उनको समय से पहले मार डालना चाहता है। इसलिए कई जवान बच्चे भरी जवानी में शराब में मर जा रहे हैं। कई जवान बच्चे आत्महत्या करके मर रहे हैं। स्कूल के बच्चे आत्महत्या करके मर रहे हैं। वाई? ये स्पिरिट ऑपरेट कर रहा है। मगर प्रभु का वचन कहता, लिसन, तेरे बच्चे जलपाई के वृक्ष के समान तेरे मेज के आजू बाजू होंगे। साम 128 में लिखा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये कहता, परमेश्वर तेरे लिए युद्ध लड़ेगा, सत्यानाश करने वाले को तेरे विरुद्ध घुड़केगा, डिस्ट्रॉयर तेरे करीब नहीं आएगा, तू कोई विपत्ति को नहीं भोगेगा। आपके बच्चों के ऊपर दुष्ट का लॉर्डशिप नहीं होगा, परमेश्वर की प्रभुता आपके बच्चों के जीवन पर होगी। आपके बच्चे बर्बाद नहीं होंगे क्योंकि आपने परमेश्वर को अपना धाम माना है। देखो दूसरा राजा 23वां अध्याय का 13 वचन में सुलेमान ने क्या गलती किया। दूसरा राजा 23वां अध्याय का 13 वचन पढ़ेंगे। जो ऊंचे स्थान इस्राएल के राजा सुलेमान ने हाँ यरूशलेम के पूर्व की ओर और विकारी नामक पहाड़ी के दक्षिण ओर अश्तोरेत नामक सिदोनियों की घिनौनी देवी हाँ और कमोश नामक मोआबियों के घिनौने देवता। घिनौने देवता, आप सुनो, मैंने आपको बोला परमेश्वर को घृणा आती है। परमेश्वर कहता घिनौना, क्या नाम के? खेमोश नाम के घिनौने देवता। कौन है? मोआबियों के। और आगे? और मिलकोम नामक अम्मोनियों के घिनौने देवता। अम्मोनियों का घिनौना देवता मिलकोम नामक, हाँ? और मिलकोम नामक अम्मोनियों के घिनौने देवता के लिए बनवाए थे। उनके लिए सुलेमान राजा ने बनाए थे। सुनो मेरी बात ध्यान से, जिनसे परमेश्वर युद्ध जिता रहा, जिनसे परमेश्वर घृणा करता, सुलेमान वाइस किंग फुलिशली एक्ट किया और उसने उन स्पिरिट्स को अपने किंगडम में इनवाइट किया जो किंगशिप लेना चाहते हैं, जो बच्चों को समय से पहले मार डालना चाहते हैं, वो स्पिरिट जो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, वो स्पिरिट जो सबड्यू, सब कुछ आपका कब्जे में लेना चाहते हैं। सुलेमान का धन कहाँ गया? कमाया हुआ कब्जे में चला गया। सुलेमान का बनाया हुआ भव्य मंदिर कहाँ गया? कब्जे में चला गया। सुलेमान का बनाया हुआ भव्य मकान जो खुद के लिए बनाया था कहाँ गया? कब्जे में चला गया। राज्य में बनाई हुई चीजें कहाँ गई? इतना कारागिरी का काम कहाँ गया? कब्जे में चला गया। क्योंकि सुलेमान ने जो ज्ञानवान था, अज्ञानता की रीति पर ऐसे इनविजिबल किंग्स को काम करने दिया, इनवाइट कर लिया अपने किंगडम के अंदर, जिसने सुलेमान के किंगडम में अपने राज्य को ले लिया। What I'm trying to tell you, बाइबल का वचन कहता तुम पतधारी याजकों का समाज हो, तुम चुना हुआ वंश हो, यू आर किंग। बाइबल का वचन कहता है वो राजाओं का राजा है और हम राजा है। सुनो, जैसे सुलेमान राजा था ऐसे हम भी राजा है। मगर आज मैं आपको पूछना चाहता, आप जो राजा है, आपके ऊपर आप किसको राजा बनाना चाहते हैं? सुलेमान ने गलती से अम्मोनियों के देवता को राजा बना दिया और असली राजा को तच दिया। मगर आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, हु इज किंग ओवर यू? आपके ऊपर कौन राजा है? किसके राज्य की प्रभुता आपके ऊपर काम करती है? यदि परमेश्वर का प्रेजेंस और परमेश्वर आपके लाइफ पर राजा है तो इन सारे शत्रुओं से प्रभु आपको बचा के रखता है। मगर यदि आप परमेश्वर से अधिक मायना दूसरी बातों को देते हैं, लाइफ में प्रॉब्लम है। जो मिस्टेक सुलेमान ने किया वो हमसे हो जाते हैं। सुलेमान चुक गया और उसके चुकने के कारण सब बर्बाद हो गया। मगर आपको मालूम, वाइजेस्ट किंग सुलेमान ने जो गलती किया, चुक गया। उसके कई सालों के बाद जोशिया नाम का राजा आया। इसलिए उसी के आगे पढ़ो, देखो क्या लिखा है। जोशिया नाम के राजा ने क्या किया, पढ़िए उसी वचन को 23 का 13, दूसरा राजा 23 का 13। जो ऊंचे स्थान इस्राएल के राजा सुलेमान ने यरूशलेम के पूर्व की ओर और विकारी नामक पहाड़ी के दक्षिण ओर
अश्तोरेत नामक सिदोनियों की घिनौनी देवी हाँ? और कमोश नामक मोआबियों के घिनौने देवता और हाँ? मिल्कोम नामक अम्मोनियों के घिनौने देवता के लिए बनवाए थे, हाँ? उनको राजा ने अशुद्ध कर दिया। उनको राजा ने अशुद्ध कर दिया। उनके ऊंचे गढ़ों को राजा ने तोड़ के गिरा दिया। आप आगे पढ़ना, उसमें पूरा वो वहां पे चैप्टर में लिखा है, राजा ने सब डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। मैंने कहा लॉर्ड, ये जोशिया है कौन जिसके द्वारा आप मुझसे क्या बात कर रहे हैं? पुराने दिनों में जोशिया है, यहोशिया ये राजा पुराने दिनों में है। मगर जब मैं उसके बारे में देखने लगा, उसके नाम का अध्ययन करने लगा, तो जोशिया के नाम का मतलब है यहोवा हैज हील्ड और गॉड सपोर्ट्स। उसके नाम का मतलब अर्थात जोशिया अब कह रहा, सुन, इवन दो यदि तू कब्जे में चला गया है, इवन दो दुष्ट ने तेरे ऊपर कब्जा ले लिया है, पाप ने तेरे ऊपर प्रभुता ले लिया है, अमोनियों के देवता मेलकम के नाई पाप ने तुझ पर राज्य ले लिया है, वो तेरे बेटे बेटियों को कब्जे में ले लिया है, तेरे बच्चे बर्बादी में चले गए हैं, नशे में धूत गए, व्यभिचार में पड़े हुए गए, इवन दो वे कब्जे में गए। लिसन, जोशिया इज राइजिंग अप। यहोशिया अब उठ खड़ा हो रहा है। कौन है यहोशिया? यहोवा द हीलर, यहोवा जो चंगाई करता है, यहोवा जो सपोर्ट करता है तुझे तेरी विपत्ति के दिनों में। जिसने यहोशापात को सपोर्ट किया, उसके युद्ध को अपने हाथ में लेने में, वही परमेश्वर आज आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। अपने प्रेजेंस के द्वारा वो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है कि इन शत्रुओं पर आप युद्ध जीत जाने पाए। आज मैं आपसे कहना चाहता, हाउ यू विल विन दिस बैटल। जस्ट बिलीव करके जो वचन आ रहा है, यहोशापात के नहीं बिलीव करके, परमेश्वर ने जो कहा ये सच है, मैं इस पर विश्वास करूंगा। वो मेरे साथ है, वो मेरे पास है, मैंने अपना जीवन उसको दे दिया है और वो इन सारी परिस्थितियों से मुझे छुड़ा कर आजाद करेगा। जिस क्षण आप अपना लाइफ उसके हाथ में देते हैं ना, इन सारे बर्बाद करने वाले स्पिरिट से वो हमें आजाद कर देता है। ये स्पिरिट्स हम पर हावी नहीं होते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता, इसलिए मालूम आपको और कुछ बताते हुए आगे लेकर जाऊंगा। आप ध्यान से सुनो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब ये सारे स्पिरिट्स अटैक करने लगे, सारी चीजें होने लगी, परमेश्वर ने जोशिया राजा को उकसाया कि इन सब को वो बर्बाद कर दे। एक और राजा के विषय में बताकर मैं आपको समझाना चाहूंगा जो मैं समझा रहा। दूसरा राजा 19वां अध्याय 32 से 34 वचन पढ़ेंगे। वो जब आप 19 चैप्टर को पढ़ते हैं आपको पता चलता है अशूर का राजा है जो युद्ध लड़ने के लिए आया है। आइजाया के दिनों में, हिजकिया राजा के दिनों की ये बात है। आइजाया प्रॉफिट हिजकिया राजा के साथ में है। और अब जब अशूर का राजा युद्ध लड़ने आया तो हिजकिया राजा के विरुद्ध में वो कहता कि वो राजा तुमको झूठ बोल के ये भरमाने ना पाए कि परमेश्वर सब कुछ कर लेगा, संभाल लेगा। सुनो, पृथ्वी पर के किसी देवताओं ने मेरे हाथों से किसी को नहीं बचाया, तो तुम्हारा देवता क्या बचाएगा? ये अशूर का राजा घमंड से बोलने लगा। पृथ्वी पर बीमारियां लोगों पर कब्जा ले रखी, कैंसर लोगों पर कब्जा ले रखा, एड्स लोगों पर कब्जा ले रखा, वैश्यगमन लोगों पर कब्जा ले रखा, शराब लोगों पर कब्जा ले रखा, कर्जा लोगों पर कब्जा ले रखा है, आत्महत्या का स्पिरिट लोगों पर कब्जा ले रखा है, पारिवारिक तलाक का स्पिरिट लोगों पर कब्जा ले रखा है। ये सारे कब्जे ले रहे हैं और ये सोचते हैं प्रभु के बेटे बेटियों के लिए जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया, परमेश्वर के चुने हुए बेटे बेटियों के लिए ये स्पिरिट सोचते हैं कि वो परमेश्वर के बच्चों के भी साथ वैसा ही खिलवाड़ कर सकते हैं जैसे वो दुनिया के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मगर आज मैं आपको बता दूं, क्योंकि तुम्हारा राजा आपका परमेश्वर आपके साथ, आपके अंदर है, आपके भीतर है। परमेश्वर ये कहता जो औरों के साथ हुआ वो तेरे साथ नहीं होगा। सत्यानाश करने वाला तुझ पर जय नहीं पाएगा, नहीं होने पाएगा। जब हिजकिया राजा के विरुद्ध वो राजा गालियां बककर, परमेश्वर को गालियां बककर, बुरे बुरे अपशब्द बोलकर, लिख के भी देकर जब वो सारी बातें बोलने लगा ना, तो परमेश्वर क्या बोलता है वो मैं आपको बता रहा। सुनो, 32 वचन से पढ़ेंगे।
इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय में यूं कहता है इसलिए यहोवा अशूर के राजा के विषय में यो कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन एक तीर भी मारने न पाएगा। ओ शब्द की ओर ध्यान दो। वो इस नगर के भीतर प्रवेश करने और एक तीर भी नहीं मारने पाएगा, एक तीर भी नहीं मारने पाएगा। सुनो, इफिसियों की पत्री 6वें अध्याय में लिखा है, अंधकार की शक्तियां 4 प्रकार के स्पिरिट्स के बारे में लिखा गया है। वे सारे स्पिरिट्स जलते हुए तीरों को लेकर हमारे विरुद्ध में तीर चलाते हैं, वचन कहता है। इसलिए तुम परमेश्वर के शस्त्रों को ले लो, लिखा है। जब उन शस्त्रों का अध्ययन करोगे तो एक ही शब्द में मैं आपको बताता हूं, वे सारे शस्त्र यीशु का वर्णन करते हैं। वे सारे शस्त्र, आप उसका अध्ययन करना, मेरे पास टाइम नहीं। वो सब जीसस के बारे में बात करते हैं कि यीशु तुमको आगे पीछे से घेर के रखा हुआ है, जीसस का प्रेजेंस है। और वो कहता है ये शस्त्र जब तुम ले लोगे ना, परमेश्वर के प्रेजेंस में जब तुम ढक जाओगे, तो वो कहता एक भी तीर जो शत्रु के पास में है, इफिसियों 6वें अध्याय के अनुसार, एक भी तीर आप पर नहीं पहुंचने पाएगा। व्हाट अ वर्ड! एक और बार पढ़ेंगे, एक और बार पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है। इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय में यूं कहता है हाँ, कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा और न वह ढाल लेकर आमीन। उसके सामने इस नगर में वो प्रवेश नहीं करने पाएगा। अरे जब नगर में प्रवेश नहीं करने पाएगा तो आप अपने घर के लिए नहीं ले सकते क्या ये वचन? सत्यानाश करने वाला तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। परमेश्वर कहता बहुत बोल दिया शैतान ने, मोसेस का लाइव ऐसे कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, फाड़ दूंगा, ये करूंगा, सारे प्लान किया मेरे लिए दुष्ट ने। मगर आपको मालूम, मेरे पापा ने एक डिक्लेयर कर दिया, और वो डिक्लेरेशन है तेरे घर के विरुद्ध एक तीर भी नहीं चलेगा। वो डिक्लेरेशन है तेरे लाइफ के विरुद्ध एक तीर भी नहीं आएगा। इसका मतलब मालूम, वो तीर कमान में से उसके तीर निकलने भी नहीं पाएगा। मे भी शायद उसके माइंड में ही नहीं आएगा कि मैं तीर चलाऊं। परमेश्वर शत्रु के मन में भी आपके खिलाफ योजनाओं को सफल नहीं होने देगा। यीशु के नाम से मैं कहता ऐसा ही होने पाए। सी बिलीव दिस वर्ड। जब हम इसको पढ़ रहे हैं ना, ऐसे ही मत पढ़ो कि हाँ उनके दिनों में कुछ हो गया। ये परमेश्वर के वादे हैं, वादे। और प्रभु ये कहता है, सुन मैं तुझसे वादा करता, अशूर का एक तीर भी नहीं होगा और वो शहर के अंदर नहीं होगा। आगे, न वह ढाल लेकर उसके सामने आने या उसके विरुद्ध दमदमा बनाने पाएगा। हाँ, ढाल लेकर, मालूम दमदमा क्या है? सारे लोग एक साथ लेके ढाल लेके स्ट्रांग कवच लेके खड़े हो जाते हैं। प्रभु कहता तेरे सामने वो खड़ा भी नहीं होगा, तेरे सामने एक ढाल लेकर भी नहीं आएगा। वाह! आप सोचो क्यों निकला था वो अपने घर से अशूर का राजा, इजराइलियों को लड़ाई लड़ने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए। मगर परमेश्वर ने क्या ठाना? वो कुछ भी ठान के निकला होगा, मगर मेरे बच्चे मैंने तेरे लिए ठाना है, तेरे घर पर एक भी तीर नहीं आएगा। टेक इट इन जीसस नेम। आपके घर पर एक भी तीर नहीं आएगा, आपकी जिंदगी पर एक भी तीर नहीं आएगा, आपकी जवान बेटी पर उसका एक भी तीर नहीं आएगा, आपके जवान बेटे पर उसका तीर नहीं आएगा, आपके छोटे बच्चों पर कोई तीर नहीं आएगा। दिस इज व्हाट इज द प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड। जब प्रभु एक लाइन में सफन्या की किताब में कहता, जय जयकार कर, आनंद कर, क्योंकि तू कोई विपत्ति नहीं भोगेगा, तो दैट्स इट, सेटलमेंट हो गया है। अब आप शत्रु के बारे में सोचते मत बैठो, बिलीव करो, एक भी तीर आप पर नहीं आएगा। आगे पढ़े, देखिए क्या लिखा है। कोई ढाल आपके विरुद्ध नहीं उठेगी, और जिस मार्ग से वो आया उसी से वह लौट भी जाएगा, उसी से वो लौट भी जाएगा। वाह! बड़े जोश जोश में आया, क्या अभी तो फाड़ दूंगा, मगर क्या वापस लौट के जाए। एक साधारण सिंपल भाषा में जब बोलते हैं ना, तो बोलते हैं कुत्ते की तरह दुम दबा के भाग गया। प्रभु कहता है तेरे शत्रु के साथ ऐसा ही करूंगा बेटा, जिस मार्ग से आएगा उसी मार्ग से भाग जाएगा। और क्या बोलता है मालूम? जब आप व्यवसाय विवरण में पढ़ते तो कहता शत्रु एक मार्ग से आएगा और 7 मार्ग से भागेगा। वाह!
दैट प्रॉमिस कीपिंग गॉड अवर किंग इज विथ अस। वो हमारे साथ है। वो ये कहता, सुनो क्या कहता है, वो कहता वो एक मार्ग से आएगा और उसी मार्ग से वापस लौट के चला जाएगा। आगे, और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा, और इस नगर में प्रवेश नहीं करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा की यही वाणी है। क्या क्या आप बोल सकते हैं लॉर्ड, क्योंकि मैं जब फरीदाबाद में रहता हूं, आप जहां रहते हैं, कैन यू से लॉर्ड, क्योंकि मैं यहां रहता हूं पापा और आप मेरे साथ रहते हैं, आई वॉन्ट टू बिलीव दिस वर्ड कि मेरे इस नगर के विरुद्ध, फरीदाबाद के विरुद्ध कोई तीर नहीं चलने पाएगा। फरीदाबाद के विरुद्ध प्रभु, क्योंकि आपने मुझे यहां रखा है और आप मेरे साथ रहते हैं, तो फरीदाबाद के घरों के विरुद्ध कोई तीर दुष्ट का सफल नहीं होने पाएगा। मेरे कारण नहीं, क्योंकि आप यहां रहते हैं, क्योंकि आप हमारे राजा हमारे बीच में है, इसलिए हमारा नगर प्रोटेक्टेड रहेगा। आई बिलीव हमारा नगर प्रोटेक्टेड रहेगा, क्योंकि परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है। पढ़ लीजिए। और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा। मैं अपने निमित्त रक्षा करके उसे बचाऊंगा। दिस इज व्हाट इज द प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड। प्रभु कहता मैं बचाऊंगा। लिसन, कोई डेविल का किंगशिप आपके ऊपर नहीं होगा, कोई पाप का किंगशिप आप पर नहीं होगा, कोई आपके बच्चों को समय से पहले मारने की योजना नहीं बनाने पाएगा, उनकी योजनाएं सफल नहीं होगी, कोई आपको बर्बाद नहीं करने पाएगा, कोई आपको कब्जे में लेकर गुलाम नहीं बनाने पाएगा। क्यों? क्योंकि तेरा राजा, तेरा यहोवा तेरे बीच में है, और वो सत्यानाश करने वाले को आपके लिए घुड़केगा। वो अपनी उपस्थिति के द्वारा आपको सुरक्षा का कवच देगा। आज मैं आपसे कहना चाहता, ऐसे सुंदर परमेश्वर से हम क्यों दूर रहे? क्यों दुनिया में भटकते रहे जहां कोई सिक्योरिटी नहीं है? क्यों दुनिया में भागते रहे जहां पर सारी झूठी बातें हैं, जब सत्य बोलने वाला परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है? क्यों ना अपना जीवन इसके हाथ में दे, क्यों ना अपने परिवार को उसके पंखों के आड़ सुरक्षा के कवच में लाकर रखे रहे और ये कहने पाए, पापा आपके प्रतिज्ञाएं सच्चे हैं। पापा, मैं बिलीव करता हूं सफन्या 3 अध्याय 14 और 15 वचन मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, और परमेश्वर ने मुझसे कहा है जय जयकार कर, आनंद कर, तो मैं जय जयकार करूंगा, आनंद करूंगा, और ये विश्वास करूंगा कि उसने मेरे दंड को दूर कर दिया है। ये विश्वास में जीऊंगा कि मेरे शत्रु को उसने दूर कर दिया है। मैं ये बात पे विश्वास करता हूं कि वो मेरे साथ है, और क्योंकि वो मेरे साथ है मैं कोई विपत्ति नहीं भोगूंगा। हमने देखा कैसे परमेश्वर ने लोगों की लड़ाइयां जीता दिया बिना युद्ध लड़े। क्या वो आपकी लड़ाई में आपको नहीं जिता सकता है? अपना जीवन उसके हाथ में देकर विश्वास के साथ उसी के लिए जियो, ये जानकर कि वो परमेश्वर आपके लिए युद्ध लड़ता है। यदि आज तक आपने अपना जीवन यीशु को नहीं दिया तो ये बेस्ट टाइम है। इसी समय कह दो, लॉर्ड मैं अपना लाइफ आपके हाथ में सरेंडर करता हूं, मेरे पापों को मैं मान लेता हूं, मैंने आपके विरुद्ध में पाप किया है, मुझे क्षमा करो, मेरे हृदय में आ जाओ, अपनी उपस्थिति से मुझे भर दो। पाप मुझ पर राज्य नहीं, आप मुझ पर राज्य करें। आई डिक्लेयर जीसस इज माई किंग। यीशु मेरा राजा है जो मुझे जय के उत्साह में लिए चलता है। आमीन। ये सुंदर सा प्रार्थना दिल की गहराई से, सच्चाई से हमारे जीवन को बदल देती है और उसके सारे प्रतिज्ञाओं को हाँ और आमीन में हमारे जीवन में पूरा करती है। इस सीरीज के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे और सीरीज के हर एक भाग के लाभ को आप अपने अपने घराने, अपने जीवन में देखने पाए। याद रखें, यीशु आपके साथ रहता है, कोई विपत्ति आप नहीं भोगोगे। आमीन। We hope that you've been blessed by today's service. If you have any prayer requests, testimonies, or just need counseling, then do write to us in the comment section, mail us, WhatsApp us, or even call us on our prayer line number. If you would like to be a financial partner or sow a seed, then our account details are on your screen. Till next time, stay blessed and stay safe. Bye.